Hello everyone, I'm Simple Patra back here from Simple Digital School. So we have to start today with DBMS lecture 13. Today we'll be covering firstly what are entities, entity sets and types of entities. And this subject is relevant for all BTech, MCA, BCA and BBA BCom honors students in Management Information Systems. That is Unit 2 we are covering through this playlist. 12 lectures we have already covered and ER modeling will do in the detail through the board itself so that you can actually learn how to draw the ER models yourself in the examination if it comes in the different ways through the different examples also. Correct? So those who are new to the channel, please subscribe it, like कीजिएगा and comment after watching the entire video. And this entity relationship diagrams will be covering in 3-4 parts so that you can have a good mastery on how to draw it actually, as it comes of 15 marks in the examination. So now I'll switch the camera towards my board so that you can understand it from the beginning, from the scratch itself, that what is an entity, what are its types and how to use it and represent it in the ER models. So let's go. So dear all, entity relationship models or diagrams are the way to represent entities of the real world through the diagrammatic representations. Here when we say database, so databases can be modeled as a collection of entities. हर entity के बहुत सारे attributes होते हैं और उन attributes को, entities को और उन entities के बीच के relationships को represent करता है entity relationship diagram. So we must keep this thing in the mind that entity relationship diagram is the logical structure of a database. ER model एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि कंप्लीट लॉजिकल स्ट्रक्चर किसी भी डेटाबेस का रिप्रेजेंट करता है. एक पर्टिकुलर डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं, मीन्स कितनी एंटिटीज़ हैं, उनके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं और वो सब आपस में कैसे रिलेटेड हैं, उन सबको शो करता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. सो व्हेन वी से एंटिटी, नंबर 1, entity is anything existing in the real world. You can see here कि I have a 2 markers here shown to you, right? ये दोनों ही markers हैं, दोनों ही real world object हैं, but इन दोनों की कुछ ना कुछ physical properties हैं. Means these markers have their own shape, they have their own color, correct? तो ये जो इसका shape और color है, ये इसकी physical properties है जिसे हम कहते हैं यहाँ पर एट्रीब्यूट्स. जब हम बात करते हैं एंटिटीज की, जो सिमिलर काइंड ऑफ एंटिटीज है, मींस अगर मैं 6 मार्कर्स अलग अलग कलर्स के ले लूं, सो आई कैन मेक अ 1 एंटिटी सेट विच इज कॉल्ड एज मार्कर एंटिटी. करेक्ट? बिकॉज दे ऑल हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक सेम काइंड ऑफ शेप, color, they all are used to write. So they have a common properties in them. Similarly, entity जब रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है तो 2 तरह के हमारे पास रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स होते हैं. नंबर 1, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है वर्ल्ड में, दैट मीन्स विच कैन बी टच्ड फिजिकली, फेल्ट फिजिकली, उन्हीं को हम टेंजिबल एंटिटीज भी कहते हैं. सेकेंड कैटेगरी इज all such kind of entities which have only conceptual existence, which are not physically present. These are also known as intangible entities. Correct? देखते हैं इसके कुछ examples. Physical entities या tangible entities कौन सी हो सकती हैं? Any student, a teacher or an employee. Correct? सिमिलरली जब हम intangible entities की बात करते हैं तो ये वो entities है जिन्हें हम यूज़ तो करते हैं but they are simply conceptual. You cannot touch them, you cannot feel them. That is bank का account. If we are making some ER model of a banking system, it means वहाँ account है तो सही, entity तो है, but we can only conceptually study it, we cannot touch it. University का course,
that is also a conceptual or intangible entity. So dear all, now let's give a look to the notation of entity or the symbols of entity set. कि जब हम ER मॉडलिंग करते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, तो उसमें एंटिटी को और एंटिटी सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कौन से सिंबल्स यूज होते हैं. हमारे पास दो तरह के एंटिटी सेट्स होते हैं. वन इज स्ट्रॉन्ग एंटिटी, अदर इज वीक एंटिटी. जब हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी की बात करते हैं तो हम एक सिंगल रेक्टेंगल से, जो कि सिंगल लाइन्ड रेक्टेंगल है, उससे रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी को. और वीक एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल लाइन्ड रेक्टेंगल से. यहाँ पर नाउ यू विल थिंक ऑफ कि व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी और अ वीक एंटिटी. आई विल गिव यू इट्स एग्जांपल्स आफ्टर डिस्कसिंग ओनली एंटिटी फर्स्ट. नाउ लेट्स गिव अ लुक टू द एग्जांपल हियर. एक स्कूल में all the students who study together, every student has a student ID, student name, student marks, student address, student phone number, student class and student section. Now you can note here कि यहाँ पर 4 students का रिकॉर्ड है. SA001, SA002, SA003, SA004. ये 4 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं और चारों स्टूडेंट्स का नाम, उनके मार्क्स, उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर, क्लास, सेक्शन इसमें फीड किया गया है. दे हैव बीन पुट अंडर द सेम एंटिटी सेट विच इज कॉल्ड एज स्टूडेंट हियर. सो कि एंटिटी सेट रिप्रेजेंट करता है उन सारी एक जैसी एंटिटीज़ को जिनके सेम फिजिकल फीचर्स हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 2 अंजू हो एक ही क्लास 6th में. यहाँ पर प्राइमरी की इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. प्राइमरी की कोई भी एक ऐसा एट्रीब्यूट, हेडिंग इनमें से हो सकती है जिसकी एंट्रीज, जिनका डेटा अपने आप में यूनिक हो, ताकि अगर 2 अंजू हैं दोनों के आईडी से आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन सी अंजू के बारे में वी आर रेफरिंग. सो हियर स्टूडेंट आईडी एक्ट्स एज अ प्राइमरी की. स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट वो एंटिटी सेट है जिसमें ये पॉसिबल है कि हम सारे एट्रीब्यूट्स में से एक एट्रीब्यूट को प्राइमरी की सिलेक्ट कर सकते हैं. Whereas in a weak entity set, there is no such attribute available which can uniquely identify every record in a table. That is why such entity set is called as a weak entity. उसकी dependability होती है किसी दूसरे टेबल पे या किसी दूसरी entity पे जिसके पास primary की होती है. Now let's talk about the example of strong entity set and a weak entity set. Suppose कोर्स एक एंटिटी है तो कोर्स का कोई नंबर होगा, दैट इज अ एट्रीब्यूट. हम एट्रीब्यूट्स को ओवल्स में रिप्रेजेंट करते हैं. सो कोर्स का कोर्स नंबर, कोर्स का टाइटल, दीज 2 आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ कोर्स. एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है हमने. यहाँ पर होमवर्क एक हमारे पास और एंटिटी है. इस होमवर्क एंटिटी का ड्यू डेट इज द वन एट्रीब्यूट, होमवर्क नंबर इज द अनदर एट्रीब्यूट and marks is the another attribute. Now course number एक ऐसा attribute है जिसके बेसिस पर हम अलग अलग कोर्सेज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसीलिए हम इस कोर्स नंबर को डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पर प्राइमरी की. सो दिस पर्टिकुलर कोर्स नंबर इज डिक्लेयर्ड एज अ प्राइमरी की. और प्राइमरी की को एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में एट्रीब्यूट ओवल में आता है और जब हम उसे अंडरलाइन कर देते हैं इट बिकम्स अ प्राइमरी की है. नाउ हियर होमवर्क इज अनदर एंटिटी सेट. होमवर्क का कोई ना कोई ड्यू डेट होगा, होमवर्क का नंबर होगा और होमवर्क के कोई ना कोई रिलेटेड मार्क्स होंगे. बट यहाँ पर बहुत सारे होमवर्क्स के सेम होमवर्क नंबर हो सकते हैं, बिकॉज अगर 4 कोर्सेज अलग अलग हैं, कोर्स 1, 2, 3, 4, वो चारों के चारों कोर्सेज में
Homework number 2 can be similar because course 1 can have a homework number 2, course 2 can have a homework number 2, course 3 can again have a homework number 2. So homework number को हम प्राइमरी की डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं because this is not unique. Again due date can be similar for the multiple homeworks also. इसीलिए इसको भी हम प्राइमरी की नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं. मार्क्स जो है वो सेम हो सकते हैं बहुत सारे होमवर्क्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स के, तो इसको भी हम यूनिक की डिफाइन नहीं कर सकते हैं, प्राइमरी की डिफाइन नहीं कर सकते हैं. सो इसीलिए ये होमवर्क बन गया हमारा वीक एंटिटी सेट, क्योंकि इसके पास ड्यू डेट, होमवर्क नंबर, मार्क्स, तीनों में से कोई भी एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है जिसे कि वो प्राइमरी की डिक्लेयर कर सके. सो दैट इज वाई homework is a weak entity set and it has a complete dependency on course for finding the primary key, and इसीलिए इसे हम कई बार discriminator भी बोलते हैं. Moreover, it has a total participation, it has a total dependency on a course. Now there are few important points to note down here. No homework without course. होमवर्क तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता जब तक कि कोई कोर्स ना हो. कोई कोर्स होगा तभी उससे रिलेटेड होमवर्क मिलेगा. एवरी होमवर्क मस्ट बिलोंग टू अ सिंगल क्लास. हर होमवर्क किसी ना किसी क्लास का होगा, किसी ना किसी क्लास के स्टूडेंट को दिया जाएगा. अ कोर्स कैन हैव मेनी होमवर्क. एक कोर्स में मल्टीपल होमवर्क्स भी दिए जा सकते हैं. डिफरेंट कोर्सेज कैन हैव सेम होमवर्क नंबर. सो हाउ टू मेक दिस होमवर्क यूनिक? उसके लिए हमें इस होमवर्क नंबर को कंबाइन करना पड़ेगा इस कोर्स नंबर के साथ, और यहाँ पर होमवर्क नंबर को जो कि एक डिस्क्रिमिनेटर की काउंट होगी उसको हम डॉटेड अंडरलाइन से रिप्रेजेंट करेंगे. This all will discuss in detail in a complete ER modeling or complete ER diagram example in the coming up lecture quite soon. Next time we'll be talking about the attributes, different types of attributes and how they are represented symbolically इन द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स. बट आपको एक छोटा सा होमवर्क करना होगा. आप लोग एक सिचुएशन देखिए कि एक बैंकिंग सिस्टम में एक पेमेंट एंटिटी है और एक लोन एंटिटी है. अब इन दोनों में से कौन सी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है और कौन सी वीक एंटिटी है? दिस यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. Next video में before starting the attributes, I'll give you the names of all those students who have given me the correct answer. So in case you have enjoyed the lecture, please do like the video and thank you so much. See you soon. Bye bye. Take care.